Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and we are here back with the part 6 of the chapter political theory. In the last class we have discussed the context of equality because we were discussing some of the social values, liberty, equality, justice, and on the behalf of that thing we have understood that the meaning of equality can be different according to the different situations, according to the different circumstances. We have seen sometime we say that yes, equality stands for equal opportunities. After some time we said no, because we have said that there are some aged people, disabled people, and for those people there should be some special provision. We consider it equality because they are not able to do development on by own, so that's why we will have to do some special provision for them, right? After that we understood some people are there who are even not able to stand in that queue. At least disabled people, poor people, aged people, they are standing in the queue. But some of the people, they are those who are not able to even stand in the queue. So what about those people? Again we understood, we re-examined the context of equality, and we found that some provision should be made for those people, right? In the same context we understood that the provision for the girl child, whose name has been struck off from the school because they have to look after their younger siblings. So we have understood, we have got the conclusion that something should be done so that equal opportunities can be generated for those. At least we are giving them that kind of opportunity that yes, they are in the queue. पहले तो क्यू में खड़े होंगे तब तो आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी में कंसीडर करोगे ना, वो तो क्यू में ही नहीं है. Getting my point? So it means we have understood that the concept of equality that is completely complicated, right? समझा? तो लेकिन फिर हमें क्या करना है? We will have to do some kind of those provision by which we can ensure equality, we can ensure fairness, right? So today we are going to move forward from that. यहाँ तक आप लोगों ने रीड कर लिया था कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट जॉब्स, डिसेंट वेजेस, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हो. अब देखो उसके बाद क्या. So the reason we have many definition is because the meaning of equality is dependent on the context. आप लोगों ने क्या किया, एक सेम सिचुएशन थी, वहां आपने क्या फील किया, 4 बार आप लोगों ने डेफिनेशन चेंज कर दी. एक बार आपने उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मान दिया, एक बार आपने क्या माना कि वो स्पेशल प्रोटेक्शन है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, फिर आपने क्या माना कि कुछ लोग तो क्यू में ही नहीं है, उनके लिए कुछ और स्पेशल होना चाहिए, राइट? फिर आपने और एग्जामिन किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रीच ही नहीं है, राइट? तो इट मीन्स क्या है, वी विल हैव टू प्रोवाइड दोज काइंड ऑफ फैसिलिटी दैट दे आर एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, दैट दे कैन से दैट यस, फेयर सिचुएशन वी आर हैविंग, राइट? तो इट मीन्स क्या है कि हमारा जो कंटेक्स्ट है ना, हमारा जो इक्वालिटी का फैक्टर है, मीनिंग है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है. वी स्टार्टेड विद व्हाट, द मीन फॉर आवरसेल्फ and then proceeded to consider others. पहले हम लोगों ने क्या फील किया कि हमारे लिए इक्वालिटी का मतलब क्या है, राइट? मतलब चेंज आप लोगों ने फील किया ना, पहले फील किया कि हमारे लिए मतलब क्या, फिर आपने फील किया कि दूसरे लोगों के लिए मतलब क्या, पुअर के लिए, डिसएडवांटेज के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, राइट? वी डिस्कवर्ड मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग. वी हैव बीन डूइंग पॉलिटिकल थियरी विदाउट रियलाइजिंग इट. देखो आप लोगों ने सेम सिचुएशन पढ़ी, आप लोगों ने अभी तक थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ा ना, बट इवन देन आपने जैसे ही सिचुएशन को एग्जामिन किया, आपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज देनी शुरू कर दी. क्यों? क्योंकि आप वही तो कर रहे हो. यू आर यूजिंग पॉलिटिकल थियरी विदाउट रियलाइजिंग इट. आपको पता भी नहीं चल रहा है और आप पॉलिटिकल थियरी रियलाइज कर रहे हो. यही है पॉलिटिकल थियरी. समझ आया? मतलब आपने देखो अभी तक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से चीजों को नहीं देखा, बट इवन देन आप कुछ ना कुछ रियलाइज कर रहे हो ना, आप अपनी हर बात को रैशनल बेसिस के साथ प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? सो अगेन वी आर सेइंग दैट यस, इट इज पॉलिटिकल थियरी. गॉट इट? पॉलिटिकल थियरिस्ट क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट्स बाय लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड यूज्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. और पॉलिटिकल थ्योरी यही बताती है आपको, मतलब वो ऐसे डिफरेंट ऐसे टफ डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स बनाना इसका मतलब नहीं है, बल्कि क्या क्लैरिफाई करती है, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स का, ताकि जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उनको एग्जामिन किया जा सके, उनको अंडरस्टैंड किया जा सके और लोग उसको समझ सकें. वो मीनिंग होता है.
राइट, कि पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को हमें कैसे रियलाइज करना है, कैसे फेस करना है। दे ऑल्सो डिबेट एंड एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग एंड ओपिनियन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और वो क्या करते हैं, वो डिबेट भी करते हैं डिफरेंट डाइवर्स मीनिंग और ओपिनियन एक सिस्टमैटिक मैनर में कि क्या होना चाहिए। जैसे आपने इक्वालिटी को स्टार्टिंग से लास्ट तक फाइंड आउट किया, तो आप सिस्टमैटिक मैनर के अकॉर्डिंग तो चल रहे हो ना, राइट। सो व्हेन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ? तो क्या आप मान लो कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हो तो उसका मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज इनफ, राइट। व्हेन डू पीपल नीड स्पेशल ट्रीटमेंट? तो आपने एक तो पढ़ा कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सभी क्यू में खड़े थे ना, तो सभी को इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर एक कंटेक्स्ट आया एज्ड पीपल का, डिसेबल्ड पीपल का। वहां से क्वेश्चन क्या आया, व्हेन डू पीपल नीड स्पेशल ट्रीटमेंट? अब स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ी? जब आपने फील किया कि कुछ डिसेबल्ड पीपल हैं, राइट, कुछ एज्ड पीपल हैं। हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग शुड सच स्पेशल ट्रीटमेंट बी गिवन? और किस बेसिस पे आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, क्या आप उसका बेस बनाओगे? शुड पुअर चिल्ड्रन बी गिवन मिड डे मील टू एनकरेज देम टू स्टे इन द स्कूल? आप किस बेसिस पे चीजें बनाओगे? देखो, जैसे मिड डे मील स्कीम बना दी, क्यों बना दी? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चे स्कूल में स्टे करें, इसलिए तो देखो हम लोगों ने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मिड डे मील स्कीम को एनकरेज कर दिया, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन स्टे इन द स्कूल, राइट। दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच दे एड्रेस। यही वो क्वेश्चन है जो आपने एड्रेस किए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या इनफ है? क्या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है? कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जहां आपको स्पेशल वे में ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन उस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भी आपको रैशनल बेस चाहिए, राइट। कौन सी पोजीशन हो सकती है जब आप वो ट्रीटमेंट कर सकते हो? क्या स्कीम्स हो सकती हैं बाय विच यू कैन एंश्योर, राइट, सो दैट अदर पीपल में ऑल्सो थिंक दैट यस इक्वालिटी इज देयर इज नो एक्सप्लॉइटेशन, राइट। समझ आया? सो एज यू कैन सी दीज इश्यूज आर eminently practical. They provide guidelines for framing public policies on education and employment. अब देखो ये क्या है, ये जो इक्वालिटी का इश्यू प्रैक्टिकल हो गया ना। थियोरी में आपने कुछ और पढ़ लिया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे स्टडी करते हो तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये जो इश्यूज है ना, ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? बिकॉज वी आर फ्रेमिंग पॉलिसी फॉर द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ना। तो आप कैसे पॉलिसीज फ्रेम करोगे, कैसे पब्लिक पॉलिसीज बनाओगे, कैसे एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज को स्ट्रक्चर करोगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने बोल दिया कि ना हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम वैकेंसी निकली तो सबके सभी एलिजिबल हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिकॉज ऑफ देयर एनी ऑफ द कंडीशन वो उन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू गिव देम रिजर्वेशन, राइट। आप लोगों ने देखा होगा जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, उनके बच्चों का हमारी अगर मान लिया क्या होगा, अगर हमारी सोसाइटी में अगर कोई जॉब है, वैकेंसीज है, तो जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर 60% पर एलिजिबल है तो हो सकता है एससी एसटी कैंडिडेट उस पर 45 पर भी एलिजिबल हो जाए। मतलब हमने उनको क्या किया है, वी हैव स्ट्रक्चर्ड आवर पॉलिसीज इन दैट मैनर स्पेशली फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि उन लोगों को फील हो कि हम उनको एटलीस्ट उस प्लेस तक तो लेके आए जहां वो एक स्टैंड कर पा रहे हैं, एक इक्वल क्यू में खड़े हैं वो लोग। गेटिंग माई पॉइंट? तो वर्क किसके लिए हो रहा है? वर्क हो रहा है उन लोगों को उस क्यू में खड़ा करने के लिए, राइट। एज इन द केस ऑफ इक्वालिटी, सो ऑल्सो इन द केस ऑफ अदर कंसेप्ट्स, पॉलिटिकल थियरिस्ट एंगेज विद एवरीडे ओपिनियंस। वो क्या करते हैं, जैसे कि इक्वालिटी का कंसेप्ट है, दूसरे भी कंसेप्ट्स हैं, तो पॉलिटिकल थियरिस्ट क्या करते हैं, हर डे के जो ओपिनियंस हैं, डिबेट, पॉसिबल मीनिंग्स एंड थ्रेश आउट पॉलिसी ऑप्शंस, वो सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट्स, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर सम ऑफ द कंसेप्ट्स दैट वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग चैप्टर। ये सारे के सारे डिस्कस आप रीड करते हो ना, इक्वालिटी, नेशनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, ये आप सारे के सारे चैप्टर स्टडी करने वाले उसी पर्टिकुलर बुक में। समझा? तो मतलब ये केस आपको क्या है, जब आपको इक्वालिटी का मतलब समझ आया ना, तो आप उसके थ्रू दूसरे ओपिनियंस को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप इक्वालिटी से लिबर्टी को एग्जामिन कर पाओगे, राइट, क्योंकि सारे के सारे कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं, आप सारे के सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। और जो इसी बुक के थ्रू आप क्या रीड कर पाओगे, ऑल ऑफ दी कॉमन एस्पेक्ट्स जो आप डिस्कस करते हो सोसाइटी में, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम। फाइन,
क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसको रीड करने से पहले व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थियरी, अब उससे पहले हम लोग रीड करेंगे जो बुक का कंटेक्स्ट हम लोग रीड कर रहे थे, जो कुछ पैराग्राफ्स बीच में छूटे हुए हैं। वी हैव अंडरस्टूड ना दैट वी वर रीडिंग अ बुक, राइट? कौन सी बुक रीड कर रहे थे? टेल मी द नेम। द बुक वाज रिपब्लिक, राइट? जो बुक किसने लिखी थी? दैट वाज रिटन बाय प्लेटो। उस बुक में बेसिकली क्या हो रहा था? वी वर रीडिंग द डायलॉग फॉर्म्स, जिसमें सॉक्रेट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड सम ऑफ द पीपल दे आर आंसरिंग। उसके बाद सॉक्रेट्स दोबारा से चीजें पूछ रहे हैं, दोबारा से उनको री एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर वो दोबारा से उस पर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं दैट यस इट इज देयर, इट शुड बी देयर, राइट? वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो लास्ट जो आप लोगों ने इस बुक का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, व्हाट हैव यू स्टडीड, कि वहां पे सोक्रेट्स ने जब पूछा था कि जस्टिस क्या है, राइट? तो किसी ने बोला था, सिफेलिस ने बोला था कि अगर आप सच बोलते हो और अपना डेब्ट को आप पे कर देते हो, दैट इज जस्टिस, राइट? फिर उन्होंने कहीं ना कहीं क्या पूछा था कि इसका मतलब तो यही हो गया कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप अच्छे रहो, दुश्मनों के साथ आप खराब रहो। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जस्ट क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छे रहो और आप अपने एनिमीज के साथ भी अच्छे तब तक रहो जब तक वो आपको हार्म नहीं कर रहे। वो ज्यादा रैशनल चीजें हो गई, समझ आया? फिर उन्होंने क्या किस कंटेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन किया था कि मेरा एक कोई फ्रेंड है, वो मेरे को आर्म्स देके चला गया, हथियार देके चला गया जब उसकी पोजीशन, दिमाग की पोजीशन पॉजिटिव थी, बट वो फिर वापस आया अपने आर्म्स लेने के लिए जब उसके माइंड की पोजीशन नेगेटिव है। तो क्या मेरे को वो हथियार उसको दे देने चाहिए? अगर मैं वो हथियार उसको दूंगा तो क्या उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या वो उसको ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में यूज नहीं करेगा? वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद क्या डिस्कशन चलता उन लोगों के बीच में, वो अब आप लोग डिस्कस करने वाले हो, राइट? अब देखो वहां पे क्या बोलते हैं, बट और द जस्ट टू इंजरी एनीवन एट ऑल, जो आप वो आर्म्स वाला कंटेक्स्ट चल रहा है ना, कि क्या होना चाहिए, कि क्या ये जस्टिस है? इंजर एनीवन एट ऑल, किसी को अगर आप जख्मी बना रहे हो, क्या ये सही है? अनडाउटली ही ऑट टू इंजर दोज हु आर बोथ वीक। सॉरी, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, राइट? इसके बाद ये वाला, अब देखो इंजरी वाला कंटेक्स्ट है। आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि हथियार से वो क्या करेगा? जो वीक है, जो आपके एनिमीज है, उनको हार्म करने की कोशिश करता है। अब देखो फिर क्या है, द मैन हु आर इंजर्ड आर ऑफ नेसेसिटी मेड अनजस्ट। अब देखो क्या है, जो पर्सन इंजर्ड होंगे, जिनके अगेंस्ट में वो हथियार यूज करेगा, आर ऑफ नेसेसिटी मेड अनजस्ट, वो अनजस्ट आप उसको दिखाओ, वो ऑफकोर्स अनजस्ट सिचुएशन है, दैट इज द रिजल्ट। ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं अगर उस पर्सन की माइंड की पोजीशन स्टेबल नहीं है तो ऑफकोर्स उन आर्म्स को नेगेटिव मैनर में यूज करेगा, एंड दैट इज कंप्लीटली अनजस्ट। समझ आया? बट कैन द म्यूजिशियन बाय हिज आर्ट मेक मैन अनम्यूजिकल? लेकिन क्या एक म्यूजिशियन है, वो अपनी आर्ट से एक मैन को अनम्यूजिकल बना सकता है? सर्टेनली नॉट, राइट? अब देखो फिर क्या बोलते, ओके दिस इज ऑल्सो लेफ्ट, राइट? लेट अस डिस्कस फर्स्ट इट। अब देखो फिर उन्होंने क्या बोला, बट और द जस्ट टू इंजर एनीवन एट ऑल, अनडाउटली ही ought to injure those who are both weak and enemies। अब देखो फिर वो क्या बोलेंगे कि जैसे मैंने उसको हथियार वापस दिए तो क्या करेगा वो किसी ना किसी को ना वीक कर, जो वीक हैं, एनिमीज हैं, उनको वो हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, राइट? फिर देखो फिर क्या होगा, when horses are injured they are improved or deteriorated। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लिया आपने किसी हॉर्स को इंजर्ड कर दिया तो क्या वो इंप्रूव होगा या फिर डेटीरियोरेटेड हो जाएगा, वीक हो जाएगा एक टाइप से? द लेटर। अब किसी ने बोला डिटेरियोरेटेड, मतलब वीक ही होगा, ऑफ कोर्स उसकी इंप्रूवमेंट तो नहीं होगी अगर वो जख्मी है। दैट इज टू से इन द गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्सेज, नॉट ऑफ द डॉग्स, यस ऑफ हॉर्सेज। मतलब अगर अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेज है तो ऑफ कोर्स वो डिटेरियोरेटेड ही होंगी, वो सारी की सारी चीजें। ये क्वालिटी किसकी है? जख्मी होना, और वो सारी चीजें क्वालिटी वो किसकी है? हॉर्सेज की है, डॉग्स की नहीं है, राइट? अब देखो, एंड डॉग्स आर डिटेरियोरेटेड इन द गुड क्वालिटीज ऑफ डॉग एंड नॉट ऑफ द हॉर्सेज ऑफ कोर्स। और अगर आप डॉग की कुछ क्वालिटीज मानते हो तो वो डॉग की क्वालिटीज होंगी जिसमें वो डिटेरियोरेटेड या इंप्रूव हो जाएगा, वो हॉर्सेज की नहीं हो सकती, राइट? अब फिर देखो, एंड विल नॉट मैन हु आर इंजर्ड बी डिटेरियोरेटेड इन दैट विच इज द प्रॉपर वर्च्यू ऑफ मैन। यानी कि देखो, अगर आपने किसी को जख्मी किया है, हॉर्स अगर पहले फाइट कर पा रहा था, राइट, लेकिन आपने उसको जख्मी कर दिया, इंजर्ड कर दिया, तो जो उसकी गुड क्वालिटी थी उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ता है, राइट? क्योंकि उसका वर्च्यू है कुछ ना कुछ, जैसे फाइट करना, ब्रेवरी शो करना, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया।
इन द सिमिलर मैनर डॉग की भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, राइट? तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर आपने उसको हर्ट किया तो, डिटेरियोरेटेड किया तो। लेकिन अब ये पूछ रहा है क्या जब मैन इंजर्ड होंगे तो वो डिटेरियोरेटेड होंगे? ऑफ कोर्स। तो क्या उनकी जो वर्च्यू है, प्रॉपर वर्च्यू है, वो इंजर्ड नहीं होगी उससे? क्योंकि देखो, अगर आपने किसी को बेवजह, किसी एक वीक पीपल को आपने जख्मी बना दिया, इंजर्ड कर दिया, तो ऑफ कोर्स उसकी जो वर्च्यू, उसकी जो वैल्यूज है वो हर्ट होंगी ना। वो हो सकता है उसका माइंड ही चेंज हो जाए पूरा का पूरा, राइट? अब देखो, सर्टेनली ऑफ कोर्स, एंड दैट ह्यूमन वर्च्यू इज जस्टिस, टू बी श्योर। और जो ह्यूमन वर्च्यू है वही जस्टिस है। आपका सद्गुण वो जस्टिस है, आपकी अच्छी क्वालिटी वो आपका जस्टिस है। समझ आया? फिर क्या है, अगेन उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है। द मैन हु आर इंजर्ड आर ऑफ नेसेसिटी मेड अनजस्ट। अब देखो, जिस मैन को, जिनको इंजर्ड किया गया है, क्या जरूरत थी? जरूरत के अकॉर्डिंग मेड अनजस्ट, मतलब उनको अनजस्ट बनाना क्या वो नेसेसिटी है? दैट इज द रिजल्ट। वो नेसेसिटी नहीं बल्कि वो रिजल्ट है। अब देखो क्या होगा कि अगर किसी पर्सन के ऊपर अटैक हुआ, वो इंजर्ड है, उसके कुछ चेंजेस आए उसकी फिजिकल पोजीशन में, उसकी मेंटल पोजीशन में, तो वो क्या है? वो क्या है? वो उसका रिजल्ट ही तो निकलेगा ना। बट कैन द म्यूजिशियन बाय हिज आर्ट मेक मैन अ म्यूजिकल? लेकिन देखो क्या है, देखो इंपैक्ट दिखा रहा है कि कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है किसी किसी चीज का। मतलब आपने किसी को हर्ट कर दिया, उसको इंजर्ड कर दिया, तो उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या जब कोई म्यूजिशियन है, कोई म्यूजिक वाला पर्सन है, जादूगर है, वो क्या कर रहा है? बाय हिज आर्ट मेक मैन अ म्यूजिकल। कोई एक ऐसा पर्सन है जो सिंग कर सकता है बहुत अच्छा, तो क्या वो अपने म्यूजिक से उसको ऐसा बना सकता है कि वो गा ही ना पाए, अनम्यूजिकल उसको बना सकता है? तो सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। और द हॉर्समैन बाय हिज आर्ट मेक देम बैड हॉर्समैन। कोई हॉर्समैन है, क्या वो अपनी आर्ट से, जो म्यूजिशियन है, वो उनको बैड हॉर्समैन बना सकता है? मतलब किसी ने जादू किया और बोला कि नहीं ये अपनी दौड़ पाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। एंड कैन द जस्ट बाय जस्टिस मेक मैन अनजस्ट, और स्पीकिंग जनरल, कैन द गुड बाय वर्च्यू मेक देम बैड? और क्या जब आप बात करते हो जस्ट बाय जस्टिस मेक मैन अनजस्ट, मतलब अगर आप जस्टिस कर रहे हो किसी के साथ, जस्ट वैल्यूज के साथ, तो क्या आप इनजस्टिस क्रिएट कर सकते हो? और स्पीकिंग जनरल, कैन द गुड बाय वर्च्यू मेक देम बैड? अगर आप किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हो वर्च्यूज के साथ, तो क्या आप उसको बैड बना सकते हो? तो क्या है ये? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं हो सकती चीजें। अगर आप मान लें किसी के साथ आप अच्छा बिहेवियर करोगे, वेल ट्रीट करोगे, तो क्या उसका बिहेव आपके लिए नेगेटिव चेंज हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता है। समझ आया? क्योंकि देखो, आप जो जनरल कंसेप्शन है वो क्या निकल के आ रही है, क्योंकि अगर आप किसी को हर्ट करो तो ही वो पर्सन आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, तो ही उस पर्सन का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अब आपके ना कुछ कोर वैल्यूज हैं, अगर उन कोर वैल्यूज को जब तक आप इल ट्रीट नहीं करोगे तब तक चीजें बिल्कुल सही हैं, जस्ट हैं। जैसे कि क्या बोला कि अगर एक म्यूजिशियन है, वो किसी एक पर्सन की आर्ट को नहीं छीन सकता, म्यूजिकल पर्सन को, सिंगर को अनम्यूजिकल नहीं बना सकता, वो किसी अच्छे हॉर्समैन को बैड हॉर्समैन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, राइट? वो किसी की अच्छी वर्च्यू को बैड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। नोर कैन द गुड हार्म एनीवन, और अच्छा पर्सन किसी को हार्म नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल दैट इज, राइट? एंड द जस्ट इज द गुड, और जो जस्ट है क्या वही गुड है? ऑफ कोर्स, सर्टेनली, राइट? अब देखो, जो जस्ट है ना वही गुड है, जो जस्ट है मतलब जो लॉजिकल है वही गुड है, वही अच्छा है। ऑफ कोर्स दैट इज द सर्टेन थिंग, दैट इज एक्यूरेट थिंग। समझ आया? फाइन। अब आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब फिर देखो, फिर क्या है? Than to injure a friend or anyone else is not the act of just man but of the opposite who is unjust. अब फिर क्या करते हो? Than to injure a friend, जब आप एक फ्रेंड को इंजर करते हो, आप उसको जख्मी करते हो, और anyone else is not the act of just man, मतलब अगर आप किसी को इंजर्ड करोगे, एक जस्ट पर्सन का वर्क तो नहीं है ना, आपके पास हथियार है। अगर आप लॉजिकल होगे, रैशनल होगे, तो आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू नो द वैल्यूज ऑफ दैट थिंग, राइट? तो ये अगर आप किसी अपने फ्रेंड को, किसी और पर्सन को हर्ट करते हो, तो इट इज नॉट द टास्क, इट इज नॉट द एक्ट ऑफ जस्ट मैन बट ऑफ द ऑपोजिट हु इज द अनजस्ट। तो क्या एक्चुअल में उसी पर्सन का काम है जो क्या है? अनजस्ट है, इलॉजिकल है, प्रॉपर वे में डिस्कशन नहीं कर पा रहा है, सोच समझ नहीं पा रहा है, इनजस्ट का वर्क है, ये अनजस्ट का वर्क है। आई थिंक दैट व्हाट यू से इज क्वाइट ट्रू, सॉक्रेट्स।
अब देखो ऑफ कोर्स, तो अब वो जो लोग हैं वो भी उसकी बातों से, सिफेलिस जैसे लोग भी उनकी बातों से सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब अगर आप जस्टिस हो तो आप ना तो अपने फ्रेंड्स को ना किसी और को हर्ट करोगे, राइट? मतलब आप जो बोल रहे हो सॉक्रेट्स वो बिल्कुल सही है। एंड ही हु इज मोस्ट स्किलफुल इन प्रिवेंटिंग और एस्केपिंग फ्रॉम आवर डिजीज इज बेस्ट एबल टू क्रिएट वन। और जो पर्सन बहुत ज्यादा स्किलफुल है, प्रिवेंटिव है, एस्केप हो जाता है डिजीज से, इज बेस्ट एबल टू क्रिएट वन। क्या वो एबल है कुछ अच्छा क्रिएट करने में? ऑफ कोर्स, राइट? एंड ही इज द बेस्ट गार्ड ऑफ अ कैंप हु इज बेस्ट एबल टू स्टील अ मार्च अपॉन द एनिमी। या फिर एक अच्छा गार्ड वो है जो चैंपियनशिप गेन कर लेता, जो जीत जाता है, स्टील कर लेता, अ मार्च अपॉन द एनिमी। अच्छा गार्ड कौन है? अब मान लिया किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, आपको अच्छे गार्ड कब माना जाएगा? जब आप अपने एनिमी के ऊपर विक्ट्री गेन कर लेते हो, तो तभी आपको माना जाएगा, अदरवाइज आप मारे जाओगे, आप इंजर्ड हो जाओगे, राइट? तो बेस्ट गार्ड किसको माना जाएगा? जब वो खुद को प्रोटेक्ट करने में अपने एनिमी के ऊपर एक टाइप से मोनार्क मार्च गेन कर लेता है। देन ही हु इज गुड कीपर ऑफ एनीथिंग इज अ गुड थीफ, इज ऑल्सो अ गुड थीफ। देखो अब इस चीज को दोबारा से समझो। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर आप खुद की लाइफ को सिक्योर कब कर पाओगे, आप खुद के पास कोई चीज कब कीप कर पाओगे, रख पाओगे? जब आप एक अच्छे गुड थीफ भी हो, राइट? अब देखो, दैट आई सपोज इज टू बी इन्फोर्ट देन इफ द जस्ट मैन इज गुड एट कीपिंग मनी, ही इज गुड एट स्टीलिंग इट। दिस इज इंप्लाइड इन दैट आर्ग्यूमेंट। अगर कोई पर्सन है, अच्छा है मनी रखने में, ही इज गुड एट स्टीलिंग इट, वो उसको चुराने में भी सक्सेसफुल हो सकता है। दिस इज इंप्लाइड इन द आर्ग्यूमेंट, और यही इंप्लाइड हुआ है आर्ग्यूमेंट में। देखो कैसे कि अगर कोई पर्सन है, किसी के ऊपर एनिमी ने अटैक कर दिया, एनिमी के ऊपर उसने अटैक करके दोबारा से अपनी चीजों को गेन कर लिया दोबारा से, तो मतलब वो पर्सन क्या है? जो खुद की चीजों को कीप कर पा रहा है ना, रख पा रहा है अच्छे से, तो पर्सन ऑफ कोर्स एक गुड थीफ भी है, क्योंकि आपसे कोई चीज उसको छीन रही, आपसे किसी ने उस चीज को छीनने की कोशिश की, आपने वापस से छीन ली, तो आप एक गुड थीफ भी बन गई ना। गेटिंग माई पॉइंट? सपोज किसी पर्सन को कोई थीफ आया और थीफ ने आप किसी पर्सन की गोल्ड की कोई चीज मान लिया चुरा ली, उस थीफ को पकड़ के उसे वो चीज दोबारा से वापस गेन कर ली, तो मतलब क्योंकि आपके पास वो चीज रखने का पोटेंशियल है, तो आप एक कीपर हो, बट आप एक अच्छे स्टीलर भी हो, आप एक अच्छे थीफ भी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी क्वालिटी है कि आप उसको प्रोटेक्ट भी कर पा रहे हो। मतलब सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है एक टाइप से, एक ही डायमेंशन के ऊपर कितने तरीके से आप सोच पा रहे हो, राइट? देखो मतलब अगर कोई पर्सन, देखो यहां पर भी क्या है कि अगर कोई पर्सन स्किलफुल है, अपने आप को डिजीज से बचाने में सक्सेसफुल है, तो वो उसको क्रिएट करेगा, बेस्ट एबल टू क्रिएट वन। अब देखो जैसे चाइनीज पीपल है ना, हालांकि कोविड-19 में उन लोगों की बहुत ज्यादा जान गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उन्होंने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए चीजों को डेवलप किया, क्योंकि उनके पास उनसे बचने के लिए टेक्निक्स थी, क्योंकि उनको पता है कि वो बच जाएंगे, तो ऑफकोर्स उसके लिए कुछ एंटी चीजें बनाएंगे और वो और कंट्री के लोगों को उसके अगेंस्ट में यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है हम तो प्रिवेंट हो जाएंगे, राइट? और वो क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसी चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। समझ आया? गेट माई पॉइंट? इज इट क्लियर? मतलब क्या है, वो क्या कर रहे हैं, हर बात को घुमा फिरा के ही इज ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ दैट थिंग, कि लोगों का दिमाग घूम जाए कि ऐसे भी तो हो सकता है, राइट? जैसे कि उन्होंने बोला कि जो बेस्ट गार्ड है वो क्या करेगा? हु इज बेस्ट एबल टू स्टील। कौन है बेस्ट गार्ड? जो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, अपने एनिमी के ऊपर विक्ट्री गेन कर पाएगा, राइट? जो एक मार्च को स्टील कर लेता है, विक्ट्री को चुरा लेता है, मतलब चुरा तो वो भी रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सही है, लेकिन एनिमी के अकॉर्डिंग तो वो स्टील हो, अब वो क्या कर रहा है? स्टीलिंग कर रहा है ना, चोरी कर रहा है, राइट? जो कुछ चीजों को अच्छे से रख पा रहा है वो क्या है? ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो अ गुड थीफ, वो एक अच्छा थीफ भी हो सकता है। जैसे कोई पर्सन है, अगर वो अच्छा है मनी को रखने में, ही इज गुड एट स्टीलिंग इट, मतलब अगर देन इफ द जस्ट मैन इज गुड एट कीपिंग मनी, मतलब अगर कोई पर्सन अगर अच्छा है तो वो क्या स्टील भी कर सकता है उस चीजों को, ही इज गुड एट स्टीलिंग इट। चीजें अगेन कॉम्प्लिकेटेड, राइट? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया। उसके बाद का डिस्कशन, जो थीफ का डिस्कशन है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आई होप स्टोरी इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। In the next video we will discuss the reason why should we study political theory. I think reason आपको समझ आया होगा
कि एक ही चीज को आप कितने डायमेंशन से सोच सकते हो. You are able to understand the particular thing by lot of mindsets, right? In the next video we will discuss why should we study political theory. If you are able to understand, please press the like button and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, try to understand the concept, try to revise it, okay? And the most important thing, stay connected. Thank you. Thanks a lot.